Good morning, students. Myself, Karthik K. Patel, lecturer in Electrical Engineering Department, VPMP Polytechnic. Subject name Electrical Traction and Control, Unit 1, Traction System. Topic name Electrical Traction System. Now we start the objective. What is the traction? Second one is the types of electrical traction system. Third one is the petrol electrical drive. Fourth one is the battery electrical drive. Fifth one is the diesel electrical drive, and summary of topic. Now first, what is the electrical traction system? The electrical traction is means for locomotive in which driving, that means tractive force, is obtained from the electrical motor. It's known as traction motor. So what do you mean by the electrical traction? तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन मीन्स व्हाट? तो लोकोमोटिव में हमको ड्राइविंग फोर्स, दैट मीन्स ट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर का हम यूटिलाइज करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन. It involves the utilization of electrical power for the traction system, like for railway, trams, and trolleybuses. You see the figure, the electrical traction. First one, the red color is a train engine, and the blue color is a coaches. And in the red color engine, top of that, you see that the one type of the electrical current collecting equipment like as pantograph is placed on tray. Now, types of electrical traction system. There are the four types of electrical traction system. First one is a diesel electric drive. Second is petrol electric drive. Third one is electrical drive, and fourth one is a battery electrical drive. In these four topic, we must be prepared for the university exam for the 2 marks question, as well as the diesel electrical drive and electrical drive for the 3 or 4 marks questions. Now the petrol electrical drive. So all of you know that this system is used in heavy duty trucks, buses, etc. Due to the electrical conversion is provide very smooth drive and speed. It can have capability to slowly on up gradient in a incredible speed and keeping up at slow. तो पेट्रोल इलेक्ट्रिकल ड्राइव का यूटिलाइजेशन हम हमारे व्हीकल्स में करते हैं. उसमें 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन का यूटिलाइज करते हैं, और सेम दैट पेट्रोल का यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और सेम दैट उससे हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वही मैकेनिकल एनर्जी हमारे व्हील के साथ कनेक्ट होती है, और देन आफ्टर व्हील ट्रैक पर मूव होता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ पेट्रोल ड्राइव. First, it's a low initial cost as compared to the electrical traction, like track electrification is not required. It requires no modification of existing system, as it self-contained locomotive. It can operate at any route. That means what? कि जो पेट्रोल इंजन है वो कोई भी ट्रक पर चल सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक ट्रक की रिक्वायरमेंट नहीं है. This locomotive is available for the 6 days in a week. Its maintenance cost is very little high due to the fuel cost of petrol. It has higher overall efficiency of about the 45%. Steam engine की 8 to 10%, IC engine की efficiency 25% to 30%, and the petrol drive की efficiency are the 45%. Now the disadvantages of petrol drive. First, limited overload capacity up to the 10%. जितनी कैपेसिटी है, सपोज के 20 टन की कैपेसिटी है, 50 टन की कैपेसिटी है, उससे 10% इंक्रीज करके उतनी ही कैपेसिटी वाला इंजन हम डिजाइन कर सकते. Its running and maintenance cost is very high due to the fuel cost of petrol. Now the fuel crisis can be affected working of this system. जैसे ही फ्यूल खत्म होता है या फ्यूल है नहीं, तो क्या होगा? ये सिस्टम नहीं चल पाएगी. Then after
battery electrical drive. So in this system, vehicle which carries the secondary cell batteries, this batteries supply power to the driving motor. Such drive is used for the small distance travel for the light duty service. It is generally used for setting in railway yard, mines, for delivering of good in cities and transportation of the parts in industries and docks. तो ये जो बैटरी इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम है उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटर साइड से हम नहीं ले रहे और स्पार्किंग इफेक्ट फायर इफेक्ट यहाँ नहीं होती, इसलिए ये जो सिस्टम है वो रेलवे यार्ड में या माइनिंग यार्ड में या सिटीज में या इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, बट इट इज फॉर द वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मैक्सिमम डेली रन अप टू द 40 टू 60 किलोमीटर्स। जो ये सिस्टम है हमने अपने टू व्हीलर्स में देखा है, यो बाइक्स में देखा है, बजाज की इलेक्ट्रिकल मोपेड में देखा है कि मैक्सिमम 40 टू 60 किलोमीटर एक बार चार्ज करे तो चल सकता है, और मैक्सिमम स्पीड उसकी क्या होती है 25 किलोमीटर पर आवर होती है। नाउ diesel electrical drive, this is the most important for your university exam also। तो डीजल इलेक्ट्रिकल ड्राइव में क्या होता है बेसिकली, तो डीजल जनरेटर सेट का हम यूटिलाइज करते हैं। डीजल जनरेटर सेट में एज अ प्राइम मूवर हम डीजल का यूटिलाइज करते हैं, उससे हम मैकेनिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वही मैकेनिकल एनर्जी का यूटिलाइज हम कनेक्ट करेंगे जनरेटर के साथ, तो जनरेटर मूव होगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी प्रोड्यूस होगी। तो हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ द डीजल इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव। तो यहाँ आप दो फिगर देख रहे हैं, फर्स्ट फिगर जो है वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीजल इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव है, और जो सेकंड फिगर है वो एक्चुअली डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कैसा होता है रेलवे में वो यहाँ बताया हुआ है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट फिगर में, तो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पोर्शन है तो वो पूरा क्या है मैकेनिकल सिस्टम है, जहाँ डीजल इंजन दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो मैकेनिकल मैकेनिज्म होती है वो दिया हुआ है, कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, और उसके साथ एज अ जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी डीजल इंजन प्रोड्यूस करेगा तो उसके साथ हम अल्टरनेटर या जनरेटर प्लेस करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। उसके साथ जो अदर एसेसरीज पार्ट्स है, कूलिंग सिस्टम हमारी है, कंट्रोल पैनल सिस्टम है, राइट, तो वो हमने प्लेस किया हुआ। तो आप सेकंड फिगर में देखिए जो स्टार्टिंग का जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, राइट, तो जो स्टार्टिंग का ग्रीन कलर का पोर्शन है वो हमारा मेन ऑल्टरनेटर है, और बाजू में जो दिख रहे हैं हम रेड कलर के बॉक्सेस, तो वो क्या है डीजल इंजन है। तो डीजल इंजन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसके साथ जो ग्रीन कलर का ऑल्टरनेटर कनेक्ट किया हुआ है वो मूव होगा, और वो मूव होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। Now the advantages and disadvantages of diesel electric drive. This is the most time question for the university exam. It has a low initial cost. It requires the no modification in existing track system. In the power loss in speed control is very less. It is a self-contained locomotive. This is available for the service in 6 days. Higher overall efficiency up to the 60 परसेंटेज पुट इन सर्विस विदाउट एनी रिपोर्टिंग टाइम। तो ये हमारे जो 7 एडवांटेजेस दिए हुए हैं। सेम दैट द डिसएडवांटेजेस में क्या है, मेनली द ओवरलोड कैपेसिटी, लाइफ ऑफ इंजन इज वेरी लेस, require the extra cooling system so that the cost of the engine is very higher, maintenance cost is very higher, running cost is very higher, regenerative braking system is not possible for this system when the fuel crisis can be affect, so that the working of the system is not possible. There are the advantages and disadvantages of the diesel electric drive. Now the electrical drive. In this type of the drive system, the DC series motor, AC series motor, as well as the three-phase induction motor are used for the locomotive for production of the mechanical power.
The motor is fed from the overhead distribution line, feed at suitable point from the grid system is controlled by manuals. तो आप देख रहे हैं ये पूरा जो सिस्टम फिगर में दिया हुआ है वो पूरा इलेक्ट्रिकल ड्राइव को एक्सप्लेन करता है। जो जो फर्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट साइड से, तो जो व्हाइट कलर का इंजन आपको दिख रहा है उसके ऊपर येलो कलर के करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में से सप्लाई को कलेक्ट करते हैं। और जो पूरा ब्लू कलर का दिया हुआ है सी शेप में वो पूरा कोचीज है। और आप बाजू में दिख रहे हैं कि ट्रैक के ऊपर एज अ ट्रांसमिशन टावर प्लेस किया हुआ है ट्रांसमिशन लाइन। तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम है जिसमें डीसी सीरीज मोटर एज वेल एज एसी सीरीज मोटर एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूटिलाइज होता है फॉर द मैकेनिकल पावर प्रोडक्शन। Advantages of electrical drive. So there are the lots of the advantages of the electrical drive compared to all other system, like as a steam engine, IC engine, petrol engine, battery operated engine, and same that the diesel electrical engine. The first one is a most and neat and clean system to compare to all system. जैसे हम स्टीम इंजन का यूटिलाइज करते हैं तो पॉल्यूशन के हिसाब से हमारी जो सिस्टम है वो बिगड़ती है। आईसी इंजन में भी सेम प्रॉब्लम है, पेट्रोल में भी सेम प्रॉब्लम है, डीजल में भी सेम प्रॉब्लम है। ये सिस्टम पूरा नीट एंड क्लीन है ड्यू टू द वी कलेक्ट द पावर फ्रॉम द outside. Then after suitable for the underground system also, high rate of acceleration and retardation. That means कि ये system में हमारा acceleration that means कि speed हमारी increase होती है, same that retardation में भी ऐसा होता है। It can offer better and efficient speed control. That means कि हमारा जो speed control है वो efficient है, उसमें कोई power loss नहीं होता और easy है। सेम दैट हाई स्टार्टिंग टॉर्क अवेलेबल है जो हमारी बेसिक आइडियल रिक्वायरमेंट है। द इलेक्ट्रिकल ट्रेन कैन बी ऑपरेटेड इन अ सेक्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक के हिसाब से हम कोई भी ट्रेन को कोई भी रूट पर किसी भी समय पर मूव कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट इज वेरी लेस, मेंटेनेंस टाइम इज ऑल्सो वेरी लेस, नो रिपोर्टिंग टाइम कि ट्रेन को स्टार्ट करना है तो कोई टाइमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ही हमने स्टार्ट किया ट्रेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रैक्शन सिस्टम फॉर द हाई ट्रैफिक डेंसिटी। इट्स रिक्वायर्ड द वेरी लेस टर्मिनल स्पेस, लेस साइज फॉर द वर्कशॉप, लेस साइज फॉर द मेंटेनेंस वर्कशॉप, vibration is very less for the journey of the passengers become a comfortably. The electrical drive is not consuming any type of fuel, less wear and tear force on a wheels and track, improve riding qualities and reduce the wear tear force on a track, handle a temporary overload condition, and regenerative braking system are possible. There are the following 15 advantages for the electrical drive. उसमें से आपको only for the 8 to 10 advantages for prepare करने exam के लिए। Now the disadvantages of electrical drive. First, कि initial cost is very high. What are the reason behind that? तो उसके लिए क्या चाहिए हमको स्पेसिफाई इलेक्ट्रिकल ट्रैक चाहिए, उसमें ट्रैक के ऊपर ट्रांसमिशन लाइन होनी चाहिए। तो क्या होगा, ट्रांसमिशन कॉस्ट की कॉस्टिंग इंक्रीज होगी, सेम दैट सबस्टेशन इंक्रीज होंगे। सपोज पावर फेलियर हुआ तो ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। और ये जो लोकोमोटिव है इलेक्ट्रिकल ड्राइव लोकोमोटिव ओनली फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रैक पर ही चलेगा, दूसरे कोई भी ट्रैक पर नहीं चल सकता। तो ये हमारा डिसएडवांटेजेस है। और ये जो सिस्टम है वो हिली एरिया में नहीं वर्क करती, राइट। तो ये हमारा बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस। और ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिकल ड्राइव वो एज पर द गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए और सेफ्टी पर्पस हमको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन से जो नियरर टू द कम्युनिकेशन लाइन होगी उसमें इंटरफियरेंस आता है, डिस्टर्बेंस आता है। और सपोज हम डीसी सीरीज मोटर का यूटिलाइज कर रहे हैं तो डीसी पावर की रिक्वायरमेंट होगी,
और डीसी पावर की रिक्वायरमेंट होगी तो डीसी सबस्टेशन चाहिए, और ओवरहेड लाइन और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में डीसी सप्लाई चाहिए। तो अलग अलग जो जितने भी कंपोनेंट इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारे बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव आपको प्लेस किया है। अभी मैं लोकोमोटिव, दिस इज द टेक्निकल वर्ड for the railway engine. Engine is a mechanical word and locomotive is a electrical word. Now the summary of the topic, we are cover the following topic. First one is the electrical traction system. Second one is the types of electrical traction system and advantages and disadvantages of ट्रैक्शन सिस्टम। उसमें से हमको दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एंड सेकंड क्वेश्चन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ओके, थैंक यू वेरी मच।